Hello students, welcome to the new session of class 10th biology. A very interesting topic, life processes. You might have heard about many of the life processes, but today I'd like to go into the depth of what living being is, what are life processes. Life is characteristic which distinguishes living from non-living. क्या डिफरेंशिएट है करता लिविंग और नॉन लिविंग को? लिविंग बीइंग्स कैन लोकोमोट, कैन शो मोशन, मूवमेंट. When I am displaced from one place to another, this is locomotion. Just watch me. When I am just displacing a part of my body without the whole body being displaced, that is movement. That's why we say animals generally locomote and move. Plants generally show movements of growth. Some tectic movements, phototaxis, hydrotaxis, geotaxis towards gravity. Stem bends towards light. If a potted plant is kept in a dark room, the stem will bend towards light if there is a window on one side. That is phototrophism. Living beings can show growth. Living beings breathe. Living beings reproduce. पर आप में कोई फिलोसफिकल बच्चा बैठा हो, वो कहेगा सर नॉन लिविंग बीइंग्स भी तो लोकोमोट कर सकते हैं. एक कार है, वो भी तो लोकोमोशन शो कर रही है, क्या वो लिविंग होगी? ग्रोथ है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दो, वो ग्रो कर जाएगा. पहाड़ के ऊपर मिट्टी जमती रहती है, आइस जमती रहती है, वो भी ग्रोथ होगी. बट लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ है, that is from inside. नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है वो आउटसाइड से. अब आप कहेंगे सर ऑल लिविंग बीइंग्स डोंट रिप्रोड्यूस. खच्चर है, म्यूल, वो कहाँ रिप्रोड्यूस करता है? कपल हैं जिनके कोई बेबी नहीं होता, वो कहाँ रिप्रोड्यूस करता है? म्यूल का उल्टा हिनी है, वो कहाँ रिप्रोड्यूस करता है? तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया बट नॉट द मेन क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग. एंड दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स. आउट ऑफ दिस, two features make living beings unique. One is consciousness. Consciousness refers to respond to stimulus. Whether it is bacteria, a single cell amoeba, plant, animals, all respond to stimuli. And all living beings show metabolism. So if I technically define life, it is sum total of metabolic processes going inside the cell. ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है क्या?
the biochemical reactions. Who is responsible for these biochemical reactions? The biomolecules, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, enzymes, nucleotides, DNA, RNA. तो जैसे केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन चलती हैं उसी तरह सेल के अंदर भी रिएक्शन चल रही हैं, और उन रिएक्शंस के लिए जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं उनको बायोकेमिकल्स कहते हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. जब तक ये रिएक्शन चल रही हैं सेल के अंदर, वी आर लिविंग. द मोमेंट दीज रिएक्शन स्टॉप, वी आर डेड. और इन रिएक्शंस को चलाने के लिए वी नीड टू हैव एनर्जी, इसलिए वी कीप ऑन रिस्पायरिंग. सो लेट्स मूव फर्दर. Criteria for being living. Living beings move, respond to stimulus is the main criteria. They grow. This growth is known as from within into susception growth. Into susception growth. Mostly they reproduce, need nutrients and capability of self-repair. However, viruses, they are neither living nor living. कोरोना वायरस की बात चल रही है. जब तक ये बॉडी के बाहर है, इट इज़ नॉन लिविंग. जब ये बॉडी के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर एंटर कर जाता है, इट इज़ यूजिंग सेल्स मशीनरी टू रिप्रोड्यूस, टू मेक इट्स ओन मशीनरी, टू मेक इट्स ओन DNA, RNA, इट्स ओन प्रोटीन्स. तो ये लिविंग बन जाता है. These are basic processes together keep living organism alive and perform the job of body maintenance and repair. Transportation, जिसमें circulation कह देंगे, हमारी बॉडी में ब्लड काम कर रहा है ये काम. Respiration for energy. Excretion, removal of metabolic wastes. Reproduction, continuity of life. Metabolism, it is of two types, anabolism and catabolism. Anabolism are building reactions. Catabolism is baking reactions. Photosynthesis is anabolic, respiration is catabolic. आप सब बच्चे बड़े हो रहे हो, नए बॉडी के टिश्यूज बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो सारा एनाबॉलिक प्रोसेस है. नए प्रोटीन्स बन रहे हैं, ग्लूकोज को आप तोड़ के एनर्जी ले रहे हो, दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस. कुछ मॉलिक्यूल्स टूट के फैट्स के एनर्जी देते हैं, दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस. So sum total of anabolism and catabolism is metabolism. और ये सारे metabolic processes के लिए we need energy which is obtained by nutrition. Hope I am clear. These are the life processes as already talked. Reproduction, consciousness main, movement, nutrition, excretion, respiration, growth. It is sum total of chemical reactions in a living organism in order to maintain life. Anabolic reactions, which are building up reactions, catabolic reactions, which are breaking up reactions. Small molecules are converted to larger molecules, and for this energy will be required. Here larger molecules are converted into smaller molecules, here energy will be released. For example, glucose in the presence of oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy which is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate,
the energy currency of the cell. So till we are living, we have to take nutrition, we have to get energy, then only all the processes will continue. Now, nutrition is the main thing. बिना खाए मर जाएंगे. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, हम प्लांट से फूड ले लेते हैं, बट प्लांट्स ने खाना अपने लिए बनाया था फोटोसिंथेसिस से. उन्होंने ग्लूकोज, उन्होंने सुक्रोज इसलिए बनाई थी कि वो प्लांट्स खुद यूज कर सकें. वो तो वी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ऑन एनिमल्स. अदरवाइज प्लांट्स ने खाना अपना खुद बनाया. It is a process of intake of and utilization of nutrients by organisms. Nutrient is a substance which an organism obtains from surroundings and uses it as source of energy for biosynthesis of body components. Life on earth depends on food sources that are most commonly carbon based. क्यों सारे most of the body हमारी, although 70% of body is water, but rest of the biomolecules contain carbon. For example, glucose, carbon, fatty acids, carbon, proteins, amino acids, carbon, DNA, RNA, again carbon containing compounds. ओ यार, मैं अगर आपकी जगह बैठा हूँ, मैं तो अपने टीचर को कहूँ कि मुझे तो यकीन नहीं कि बॉडी कार्बन की बनी है. किसी भी जानवर को, प्लांट को जला दो, जैसे हम ही डेड बॉडी को जला देते हैं, वो राख बन जाती है सारी. पेड़ को, बड़े सारे पेड़ को जला दो, वो राख बन जाएगी. तो ये क्या है? कार्बन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. दो तरह की न्यूट्रिशन हो सकती है बच्चों. ऑटोट्रॉफिक, जो खाना खुद बनाए, मेकिंग देयर ओन फूड. हेटेरोट्रॉफिक, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं. वी आर ओमनिवोर्स. प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं. वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रिपेयरिंग वंस ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं. देयर आर टू टाइप्स जिनको सनलाइट की जरूरत हो. फोटो ऑटोट्रॉफ्स. जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन. अभी छोटे हो बट फिर भी थोड़ा समझा देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए. उसको वाटर नहीं चाहिए था. ये हाइड्रोजन का सोर्स कैन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, कैन बी नाइट्रिक एसिड, कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, कैन बी एसिटिक एसिड. तो chemoautotrophs, they do not require sunlight. They are depending on these inorganic molecules to obtain the source of hydrogen to synthesize their food. इसलिए उनको कह दिया chemoautotrophs. Phototrophs, they trap cell energy, solar energy coming from sun.
They use raw materials, carbon dioxide and water in the process of photosynthesis. Chlorophyll is the main molecule which will trap solar energy. Some bacteria like sulfur bacteria, कभी मनाली जाओ तो उधर मणिकरण साहब गुरुद्वारा है, उधर थायोबैसिलस एक्वेटिकस, उधर गर्म पानी के चश्मे हैं, उनमें भी हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी बैक्टीरिया रह रहे हैं और वो क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एज द मीडिया. तो कीमोऑटोट्रॉफ्स, some bacteria like sulfur bacteria, nitrifying bacteria capture energy released during chemical reaction and use it for synthesis of food. तो ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है. जैसे नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोबैक्टर है, वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस में, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दैट इज कीमोऑटोट्रॉफिज्म. Now, heterotrophic nutrition is of three types. Holozoic, जो कंप्लीट फूड अपना सॉलिड फॉर्म में अंदर ले जाएं. सेप्रोट्रॉफ्स, फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर. फेवरेट एग्जांपल इज फंजाई. मशरूम खाने में तो बड़ी टेस्टी लगती है, एगेरिकस, बट अगर आप इसको ग्रो करते देख लो तो शायद कभी ना खाओ. ये गंदगी में ग्रो करती है, ब्रेड के ऊपर उर्ली लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है. तो वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फंजाई फीड कर रहे हैं. पैरासाइट्स, ये एक्टो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं. ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे. पैरासाइट कभी होस्ट को मारेगा नहीं. जैसे आपके सिर में जू होगी, लाइस, दैट इज एक्टोपैरासाइट. टेपवर्म, टीनियासोलियम, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, राउंड वर्म, वो आपके इंटेस्टाइन में एज एंडोपैरासाइट रह रहा है. लीच है, वो एक्टोपैरासाइट है. कुछ प्लांट्स हैं, कस्क्यूटा, अमरबेल, वो टोटल स्टेम पैरासाइट है. वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट के जाइलम और फ्लोएम में अपने हॉस्ट्रास या सकिंग रूट्स डाल देता है और उधर से न्यूट्रिशन ले लेता है. तो पैरासाइट ऑलवेज इज डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट. होस्ट मर गया तो पैरासाइट मर गया. इसलिए पैरासाइट कभी भी होस्ट को मारता नहीं. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ब्रेड पे उन्होंने फंगल ग्रोथ दिखाई है, जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं. राइजोपस, म्यूकर, ये दो कॉमन ब्रेड मोल्ड हैं. दे लिव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक रॉटन लीव्स, हाउस होल्ड वेस्ट. इवन लेदर पे भी उर्ली लग जाती है. लेदर भी तो स्किन है, हमारे स्किन पे भी उर्ली लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है. दे डिजेस्ट फूड एक्स्ट्रा सेलुलरली. मान लो ये कोई ब्रेड मोल्ड का हाइफा है, उसने ब्रेड से खाना पहले डिजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फंजाई, दे डू देयर डिजेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली. स्क्वेंजर्स ऑफ नेचर, सफाई करते हैं ये. फंजाई ना हो तो इतनी गंदगी फैल जाएगी, इवन बैक्टीरिया और स्क्वेंजर्स, कि आदमी तो इतनी गंदगी उठा ही नहीं पाएगा. द होल अर्थ विल बी कवर्ड बाय डेब्रिस. तो एक ब्यूटिफुल बैलेंस बनाया हुआ नेचर ने. चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे फंजाई है, चाहे बैक्टीरिया है,
चाहे इवन अमीबा है, इकोलॉजिकली एक बैलेंस बना के रखना सबका काम है. इट इज़ वी सेल्फिश ह्यूमन बींग्स who are playing with the environment, we are destroying the environment. फॉरेस्ट काटी जा रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जा रहा है. फ्लड आने का मतलब ही नहीं पैदा होता अगर आप फॉरेस्ट ना काटो तो. डैम्स बना दिए, फ्लड आ गए. वी आर प्लेइंग विद द एनवायरनमेंट. इसीलिए आज से अगर मैं 20-15 साल पहले बात करूं, किससे पूछो कि व्हाट आर यू, he'll say I am an environmentalist. इसकी भी कोई स्टडी होती है. बट लास्ट 15 years नाउ वी हैव बिकम वेरी वेरी अवेयर, एनवायरमेंट कॉन्शियस. इवन घरों तक वी टॉक अबाउट ग्रीन थिंग्स, throwing waste in dustbins, reuse, recycle. These all are the slogans which are being used by modern world, because if we destroy our environment, we can't talk about sustainable development. Hope I am being very clearly understood. Parasitic nutrition, as I said, organism derive its food from the host without killing it. Parasite harms the host, as I said, Quisquetua amarbale is total stem parasite. Malaria parasite Plasmodium, goes to liver and finally enters the RBCs. So these RBCs get burst, causing fever, reoccurring fever. बुखार होता है हर दूसरे से तीसरे दिन बाद, ठंड लगती है, चिल, वीकनेस आ जाती है, आरबीसीज के फटने से एनीमिया हो जाएगा. तो ये मलेरिया. तो प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन which is an endoparasite, is transmitted by female anopheles. इसको वेक्टर कहते हैं. अब कई बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेल एनोफ्लीज क्यों नहीं. मेल एनोफ्लीज दे आर sucking the plant sap. It is female anopheles mosquitoes, female culex, Aedes, which suck blood, and they are known as vectors. So they are just showing that they can live in intestine, they can be parasites of stomach, even plant pathogens, pathology, study of diseases. एंड पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग एजेंट. आप कई बार बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर कहता है यार यूरिन ब्लड टेस्ट कराओ, तो आप चले जाते हो पैथ लैब में, पैथोलॉजी लैब, तो वो आपका टेस्ट करके बताता है भाई ये बीमारी है. होलोजोइक, होलो मीन्स कंप्लीटली इनगल्फिंग और टेकिंग द फूड. मैं आलू काटा पूरा खा गया, मैं भी होलोजोइक हूं. Holozoic nutrition, feeding on solid food. Organism take complex organic food material into its body by the process of ingestion, खाना खाना. Then it is digested, absorbed into the body cells and assimilated. Assimilated means becoming integral part of the cell. For example, मैंने आलू खाया, आलू में स्टार्च थी. स्टार्च इज अ बिग चेन ऑफ ग्लूकोज. डिजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल विच इज जनरली insoluble is converted into simple soluble form so that it can be easily absorbed and assimilated in the cells. So complex food
is converted into simple form. For example, all carbohydrates will be converted into monosaccharides. Like glucose, galactose, mannose, fructose. All proteins, this is aim of digestion. All proteins will be converted into amino acids. Fats into fatty acid plus glycerol. So complex food is being converted into simple food. This is what is known as digestion. So that simple food is soluble, which can be easily absorbed and assimilated. मतलब cells के अंदर cytoplasm के अंदर भर के जाना. That is assimilation. Nutrition in plants. Plants show photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली, पानी धरती से लिया. In the presence of light and chlorophyll, they are making glucose. This is photosynthesis. They are autotrophs, possess process by which green plants make their own food from carbon dioxide, water by using sunlight. In the presence of chlorophyll is called photosynthesis. During the process of photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. Light energy से ये ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बाकी सारे OH लगे हुए हैं. तो मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला याद करो, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी. अब जब ये बॉन्ड टूटेंगे रेस्पिरेशन में तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय ग्लूकोज. तो सारा प्रोसेस, इसीलिए जब हम छोटे थे तो बायोलॉजी टीचर क्लास में आते थे, दे यूज्ड टू से कि ऑल एनर्जी इज कंटेन्ड इन बॉटल ऑफ सनशाइन, सनलाइट. All energy is contained in bottle of sunlight. Then they used to say, all flesh is grass. तब हम छोटे थे, समझ नहीं आता था all flesh grass कैसे होगी भाई. अरे भाई शेर तो खरगोश को खाएगा, पर खरगोश तो घास खा रहा है. पर घास ना होती तो खरगोश की बॉडी ना बनती. खरगोश ना होता तो शेर उसे ना खाता. और घास किसने बनाई है? फोटोसिंथेसिस से. तो ये सारा साइकिल है, डिपेंडेंसी है. दिस इज द रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म्स ग्लूकोज, रिलीजिंग वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इसलिए हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स लगाओ. कोई सड़क पे कार चला रहे होते हो, कोई डिज़ाइन नहीं है कि साइड पे पेड़ लगे हुए हैं, वो जान के पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो व्हीकल से वो प्लांट्स उसको फिक्स कर दें, पोल्यूशन फ्री कर दें और उसको ग्लूकोज बना के ऑक्सीजन दे दें. द ग्रीनर द एनवायरनमेंट, मोर ऑक्सीजन, द मोर कंफर्टेबल यू आर. एंड यू नो हाउ मेनी पीपल हैव डाइड ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस पैंडमिक, जिसमें ऑक्सीजन डेट आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. So you can very well imagine how much we are dependent on oxygen. So as a responsible biology students, you should be aware of environment and try to think philosophically that how nature has gifted us so many things, but we are taking undue advantage.
दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट लीफ. ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस. इसके ऊपर और नीचे क्यूटिकल की लेयर होती है विच इज एक्टिंग एज ए सनस्क्रीन. लगाने सनस्क्रीन लोशन कि टैनिंग ना हो जाए. तो प्लांट्स ने एक नेचुरल सनस्क्रीन लोशन बनाया हुआ है जिसका नाम है क्यूटिकल. वैक्सी लेयर है. सारा दिन पत्ते गर्मी में झुलसते रहते हैं, सनलाइट में पड़े रहते हैं, पर सड़ते नहीं, क्योंकि उनके पास एक नेचुरल सनस्क्रीन लोशन है, क्यूटिकल. फिर इंटरनली देखें तो ये लंबे लंबे सेल जो हैं ये पेलिसेड पेरेन्काइमा है. दे विल डू फोटोसिंथेसिस. ये जाइलम ऊपर है, नीचे फ्लोएम है और ये बंडल सीड सेल्स हैं. ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है. ये गार्ड सेल्स विद ओपनिंग नोन एज स्टोमा, जहां से जब ये खुलेंगे तो गैसियस एक्सचेंज होगी और ट्रांसपीरेशन भी इनके थ्रू होगी. तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का ब्यूटीफुल. ये एपिडर्मिस अपर, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल, क्यूटिकल, पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत होती हैं ताकि एयर बड़ी जल्दी से अंदर जाए और बाहर आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज डूइंग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस. This is again another structure they have just shown. This is given in your NCERT. This is the whole leaf structure they have shown, and they have cut it through the midrib and a vein through which vascular supply is there. Upper epidermis, then cuticle layer, it's written waxy cuticle. Lower epidermis, lower cuticle, guard cells. Now as I said, spongy parenchyma will have large intercellular spaces, so things can go in and out. फिर ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का दिखाया है. तो ये क्लास 9th में आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं. ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स थाइलेकॉइड्स हैं विच आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन. इनको कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेनम. कई सारे ग्रेनम मिलके प्लूरा बनता है ग्रेना. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. थाइलेकॉइड डिस्क दिखा दी इन्होंने. बाकी जो पोर्शन बचा ये सारा स्ट्रोमा है. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. क्यों भाई? एक्चुअली इवोल्यूशनरी थॉट ये है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो सेल के अंदर आके परमानेंटली रहने पड़े. और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी मशीनरी है, अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अपना आरएनए बनाएगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. बट फिर भी ये कुछ एंजाइम्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कह देते हैं. I think semi-autonomous word is clear because it contains its own DNA, RNA, ribosome for protein synthesis. It has its own machinery. It has 70S ribosomes just like prokaryotes. तो जैसे आगे चलेंगे, ग्रेनम में I'll tell you लाइट रिएक्शंस होंगी फोटोसिंथेसिस की, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होंगी फोटोसिंथेसिस की. So we'll come to it. Just introduction. Components required for photosynthesis: light, water, chlorophyll, carbon dioxide. अब ये लाइट का सोर्स होना जरूरी है. विबग्योर
कि दिस वेवलेंथ इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. Rate of photosynthesis maximum in red light. अब सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, एक लीफ ले लेते हैं ग्रीन, उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं. लेट्स से पॉटेड प्लांट था जहां लीफ लगी हुई है. जब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं बाय ब्लीचिंग इट इन वाटर बाथ इन अल्कोहल, तो ये सारा पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाएगा. जिसको ब्लैक पेपर से कवर किया था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा. तो आयोडीन टेस्ट जो है वो सिर्फ ये पोर्शन दिखाएगा, इंडिकेटिंग सनलाइट वाज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल is necessary for photosynthesis because it will trap the energy. अगर आप कोई वेरीगेटेड लीफ ले लेते हो जिसमें पैचेस हैं, मान लो रेड पैच है, पर्पल पैच है, ये बाकी सारा पोर्शन ग्रीन है, ओनली दिस ग्रीन पार्ट विल डू फोटोसिंथेसिस. फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, एक लीफ को लेके उसको वाटर बाथ में रख के अल्कोहल में ब्लीच कर देते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं. जब आयोडीन डालते हैं तो ये पोर्शन ब्लू ब्लैक हुआ, जो रेड पैचेस थे कभी ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इंडिकेटिंग क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है, ये थाइलाकॉइड्स के ऊपर ऐसे, ये क्लोरोफिल है. और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, फिर पायरोल रिंग्स हैं, फाइटॉल टेल है. तो फिर जैसे हमने शुरू में कहा कार्बन, ये भी कार्बन का ही बना. ये लाइट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ये देखिए, इस पत्ते में येलो कलर का भी पोर्शन है, ग्रीन का भी पोर्शन है. जब स्टार्ट टेस्ट लगाया तो सिर्फ ग्रीन पोर्शन ब्लू ब्लैक हुआ, बाकी सारा पोर्शन वैसे का वैसा रह गया. इस पैच लीफ को वेरीगेटेड लीफ कहते हैं. जैसे क्रॉटन लीफ होगी, पैचेस होते हैं वेरीगेटेड. Components required for photosynthesis: carbon dioxide. It is obtained from atmosphere, enters through minute pore called stomata on the surface of leaf. ये stomata are guarded by kidney-shaped guard cells. तो जब आप हायर बायोलॉजी पढ़ोगे, डाइकॉट में ये किडनी शेप्ड होते हैं, मोनोकॉट्स में ये डंबल शेप्ड हैं. तो ये एक तरह का नोज का काम कर रहे हैं यार प्लांट्स में, और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. ये बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. 2 बेल जार्स लिए हैं, सनलाइट में रख दिए दोनों पॉटेड प्लांट्स, पानी अवेलेबल है, पर इसमें एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है. पूरा दिन ये दोनों प्लांट्स धूप में रखे. शाम को जब हमने इस रोज प्लांट के लीव्स को आयोडीन टेस्ट किया तो इधर देयर वाज नो पॉजिटिव टेस्ट विद आयोडीन, नो ब्लू ब्लैक कलर. इन लीव्स में ब्लू ब्लैक कलर आ गया. तो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी. पहले एक प्लांट को ना 24 आवर्स टू 48 आवर्स डार्कनेस में रख देते हैं. ये पहला स्टेप होता है. फिर मान लो सनलाइट में रखा आपने, डार्कनेस में क्यों रखा? ताकि जो ऑलरेडी उसकी स्टार सिंथेसाइज है वो अपने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज कर ले. जो सुक्रोज प्रेजेंट है वो सारी खत्म हो जाए. फिर इसको सनलाइट में रखा, फिर इस लीफ को प्लग करके
अल्कोहल में डिप करके एक वाटर बाथ में हीट करते हैं, उसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लीच हो जाए। क्यों? अल्कोहल विल विड्रॉ द क्लोरोफिल, इट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अल्कोहल सारी क्लोरोफिल को निकाल लेगी बाहर। तो ये ब्लीच लीफ के ऊपर अब जब आप आयोडीन एक्सपेरिमेंट लगाओगे तो यू विल फाइंड कि सारी लीफ ब्लू ब्लैक होगी। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब मान लो आपने इस पोर्शन को एक ट्यूब में कवर कर दिया जिसमें आपने QH डाल दिया, तो जब आपने आयोडीन टेस्ट लगाया तो जो पोर्शन QH में डिप्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, बाकी पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इंडिकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो किसी तरह भी एक्सपेरिमेंट लगा सकते थे, आपकी मर्जी। Components required for photosynthesis: water. Water is used in photosynthesis taken up by the soil by roots in terrestrial plants. और रूट्स जो हैं वो सिंगल सेल रूट हेयर सेल्स होते हैं, सिंगल सेल के, और कैपिलरी वाटर में डिप्ड है। यार, इफ यू आर वॉचिंग दिस, इट इज नॉट द डेप्थ विच मैटर्स। वो ग्राउंड वाटर तक तो रूट पहुंचते ही नहीं। अगर आप पंजाब की बात करो, पंजाब में 300-400 फीट बोर करो तो पानी आता है, इतना डीप तो रूट जाता ही नहीं। फिर कुछ पानी ट्रैप्ड है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वो भी वेस्ट है। फिर कौन सा पानी यूज करे प्लांट्स? जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है, ये वाला पानी, इसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। अदर मटेरियल्स लाइक NPK तो बहुत ही जरूरी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैं एब्रीविएशन दे देता हूं, कॉर्न, पस, पका, मज। कॉर्न, पस, पका, मज, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कॉर्न, पस, पका, मज, है ना आसान तरीका। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके बने हैं भाई? अमाइनो एसिड्स के। ये जनरल फार्मूला है किसी भी अमाइनो एसिड का। हमारी पूरी बॉडी 20 अमाइनो एसिड्स की बनी है। जिसमें से 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब आवर बॉडी कैन नॉट मेक देम, वी रिक्वायर इट फ्रॉम आउटसाइड। एसेंशियल मीन्स वी रिक्वायर फ्रॉम आउटसाइड। 10 कौन कौन से हैं? अभी छोटे हो, तंग नहीं करूंगा, बट फिर भी ये देखो कितनी सुंदर एब्रिविएशन बन गई। हिल, पहाड़। MTV देखते हो, वो अंग्रेजी गाने आते हैं भाई। टैप, ये सारे फर्स्ट नेम हैं। कॉम्प्लान के ऊपर पढ़ो, लिखा होता है कंटेन्स एसेंशियल अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, फेनिलएलनिन। हाँ, याद हो गया। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, फेनिलएलनिन। तो मैं नहीं चाहता अभी आप अमाइनो एसिड याद करो, बट ये अगर हिल, MTV, टैप याद हो गया तो आपको कम से कम दिमाग में तो रहेगा कि H फॉर हिस्टिडीन कुछ सर ने बताया था, तो +1 में जाके और पढ़ लेना। चूंकि बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं
कि एम ऑफ लाइफ क्या है, सेंट्रल डॉगमा क्या है। सेंट्रल डॉगमा, तो वो एम जो लाइफ का है उसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। वो क्या चीज है भाई? डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए गोज टू राइबोसोम्स टू फॉर्म प्रोटीन्स। अक्सर मेरे लेक्चर्स में ये बात अक्सर सुनने में मिलेगी कि यार मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने होटल मैनेजमेंट करके एक 5 स्टार होटल का मैनेजर बनना है। अरे यार बिना बॉडी के क्या बनोगे? भूत बनोगे। और ये बॉडी का ही की है? प्रोटीन्स की, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे बैक्टीरिया है। मॉलिक्यूलर एम ऑफ लाइफ इज टू मेक प्रोटीन्स। तो डीएनए कमांड देता है, आरएनए बनता है, आरएनए आगे जाके प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। मेरे बॉडी में देखो, हेयर प्रोटीन, केराटिन, मेलानिन, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, मायोग्लोबिन इन मसल्स, एक्टिन, मायोसिन, ऑसिन एंड प्रोटीन इन बोन्स, कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज, कोलेजन, फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बायोकैटलिस्ट। तो बिना प्रोटीन के क्या करोगे यार? और प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन सोर्स जरूरी है, इसलिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। चाहे वो राइजोबियम बैक्टीरिया है, चाहे नाइट्रोसोमोनास है, चाहे नाइट्रोबैक्टर है, चाहे एजोला है, चाहे एनाबीना है, चाहे नॉस्टॉक है, वो सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। नाइट्रोजन आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और वो यूज करके प्लांट्स अपने अमाइनो एसिड बनाते हैं, और हम प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन्स लेके उनको तोड़ के अपने अमाइनो एसिड्स यूज करते हैं। तो जैसे सेल ब्रिक है एक बॉडी की, तो ब्रिक आगे मटेरियल उसका क्या है? अमाइनो एसिड्स। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं भाई? 26। He topped class 10th exam. He's a very obedient boy. She respects her teachers and parents. 26 अल्फ़ाबेट से सेंटेंसेस बनाए हैं। उस तरह मेरी बॉडी की विकैब में, प्लांट्स की बॉडी की विकैब में, बैक्टीरिया, फंजाई की विकैब में सिर्फ 20 अल्फ़ाबेट्स हैं नोन एज अमाइनो एसिड्स, जिनके सेंटेंसेस हैं आर प्रोटीन्स, जिसके डिफरेंस से मिलियंस ऑफ स्पीशीज डिफरेंट बनी हुई हैं। Major steps involved in photosynthesis: absorption of light by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water into hydrogen and oxygen. ये वाटर स्प्लिट कर जाता है चार ये, और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 OH है हमारे पास, ये वाटर बन गया, ये भी वाटर बन गया, और ये जो 2 ऑक्सीजन बचे ये रिलीज हो गए। दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस, जो कि लाइट रिएक्शन में हो रहा है। और फाइनली लाइट रिएक्शन का एम क्या है? ATP बनाना और NADPH बनाना, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, जो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए, एंड यू नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। This is what 3 steps are involved: absorption of light, conversion of light energy to split water molecules. Water molecules split होने से ये H पॉजिटिव अवेलेबल हो जाएगा, इधर चला जाएगा,
and here thereby oxygen is released, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. तो ये हाइड्रोजन फाइनली ट्रांसफर कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर ना होता तो NADPH ना बनता, NADPH ना बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होनी थी। ये देखो, this is how it is showing. It is during light reaction that ADP and inorganic phosphorus are converted into ATP. It is during light reaction that NADP positive is converted into NADPH. और फिर बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे, एक C3 साइकिल है जिसको केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, उसमें जाके ग्लूकोज बनना है तो ये शुगर बन गई, ये वाली ग्लूकोज। ये सारा काम लाइट रिएक्शंस में है, ये डार्क रिएक्शन में। But don't take it in a misnomer sense that dark reactions will occur only in dark. Na? Light reactions will occur in the presence of sunlight, but dark reactions सुबह भी चलेंगी, शाम को भी चलेंगी. They are known as dark reactions because they are independent of light. ये नहीं कि ये रात को होंगी. They are biosynthetic reactions in which glucose will be synthesized. Light reactions take place, इनको हिल रिएक्शंस भी कहते हैं, in thylakoid membranes of chloroplasts. The aim is to produce ATP and NADPH, which are high energy molecules. Here photolysis of water occurs. तो मैंने पीछे बना के दिखाया आपको. Formation of assimilatory powers or reducing powers, ATP and NADPH, which are used in dark reactions. ये समराइज किया उसने. तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है हिल रिएक्शंस. डार्क रिएक्शंस और ब्लैकमैन्स रिएक्शंस, दे आर biosynthetic pathways. It is light independent process in which sugar molecules are formed from carbon dioxide. Dark reactions occur in stroma of chloroplasts, where they use products of light, that is light reaction, that is ATP and NADPH. Plants capture the carbon dioxide of atmosphere, which combines with the organic molecules to form 3 carbon compound. ये 3 carbon compound जो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है. तो काफ़ी स्टेप्स हैं जो इस स्टेज पे हम नहीं डिस्कस कर सकते. जैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आगे जाके डाइहाइड्रोक्साइस्टोन फॉस्फेट से कंबाइन करेगा, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा. तो ऐसे कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं.